کہہ رہے ہیں آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. دم کے جلال کے لیے زوردار تالی. سب بچے باتیں بند کر دیں گے، شرونا آگے آ جائیں گے اور سب بچے ذرا خاموشی اختیار کریں گے. شرونا آگے آ کے بیٹھے. ٹوڈے از دا ڈے آف ریجوائسنگ. آج خوشی اور شادمانی کا دن ہے. سب ایک دوسرے کو کہیں گے گاڈ بلیس، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو. ہاں کتنے پیارے لگ رہے ہیں مسکراتے ہوئے. ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ذرا رابطہ قائم ہوگا. میں کہتی ہوں یہ رابطہ ورشپ میں، دعاؤں میں ہر وقت قائم رہنا چاہیے. جب ورشپ ہو رہی ہوتی نا سب ایسے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہونے لگ گیا، پتہ نہیں کیا ہونے لگا. ہاتھ بھی ایسے بند ہو گئے اور آنکھیں بند کر کے نا جیسے نیند نہیں آئی، آدھی نیند ادھر نہیں پوری کرتی. نہیں سو کے آئے تو پھر گھر جا کے سونا، یہاں پر نہیں. جیسے میں نے کہا ناراستی کی دولت میں اگر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، راست نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں تو حقیقی دولت یسوع مسیح ہمارے حوالے کبھی نہیں کرے گا. ہم ناراستی میں، یہ دنیا کی دولت کیا ہے؟ ناراستی کی دولت. یہ ہے ناراست دولت جو ختم ہونے والی. راست بازی تو ختم ہونے والی نہیں، راست بازی ہمیشہ قائم رہنے والی. پر ناراستی کیا ہے؟ ختم ہونے والی فانی چیز. پر خدا ہمیں فانی چیزوں سے ہی سکھاتا ہے. پھر غیر فانی جلال دے گا، غیر فانی برکتیں دے گا. اگر یہاں پر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے جو کہ نہیں رہی ایمان کے مطابق، کیونکہ ہم نے ایمان کے مطابق لکھا ہے خدا چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے کہ جیسے پہلے سے موجود ہے. یس چیز نہیں ہے، ایمان سے کہہ دے کہ ہے تو وہ کیا ہو مل جائے. کہیں تو یقین ہوتا ہے نا کہ یہ مل جائے گی. شفا سے پہلے میں کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے کہ شفا مل جائے گی تو پھر مل جائے گی. پر اگر ہم کہ اچھا چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اچھا کر لیتے ہیں دعا، دیکھتے ہیں لیٹ سی کہ ملتی ہے پھر. آج ہم اعلانیہ خدا کو چیلنج کر رہے ہیں. میں اور آپ خدا کو چیلنج کر رہے ہیں جب ہم اپنی باتوں سے اوپر جاتے ہیں تو ہم خدا کو چیلنج کرتے ہیں. لیکن وہ کیسا خدا ہے؟ وفادار. وہ اپنے نام کا انکار نہیں کرتا. اس نے اپنا نام ہمارے ناموں سے جوڑ دیا. اب وہ ہٹائے گا، اس کا وعدہ ہے. ہاں برکت روک لے گا لیکن نام سے نام نہیں ہٹائے گا. پھر سکھائے گا، گرا پڑا رہنے نہیں دے گا. صادق اگر گرے تو اٹھ کھڑا ہوگا، اور اگر گرا ہی رہے گا تو کیا ہے؟ شریر. پر اگر اٹھ کھڑا ہوگا تو صادق. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ شریر ہے یا صادق ہے. جیسے پاسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ قرضہ اترے ہی نہ تو یہ کیا ہے؟ شریر ہے. صادق قرض لیتا ہے اور ادا کرتا ہے. صادق قرضہ لے گا تو ادا کرے گا. اس کو نیند نہیں آئے گی، بے چینی ہوگی کہ میں نے اس کا دینا ہے. حالانکہ یسوع مسیح نے کہا قرض دے کر واپس نہ جا. یہ بھی لکھا ہے. اگر ایک دفعہ قرض دے دیا تو اگر جو آپ کو واپس نہیں نہ دے گا، اب یہ اس کا ایکشن آنا ہے تو وہ صادق ہے یا شریر. اور جو مانگ نہیں رہا وہ تو یسوع مسیح کی بات کا پورا لحاظ رکھ رہا ہے، مان رہا ہے. اس نے قرضہ دے دیا پر وہ واپس نہیں مانگ رہا. اور جس کو ملامت آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ واپس. لکھا ہے تو 7 کو نہیں بلکہ 8 کو دے اور اس سے تیری اولاد کو برکت ملے. پر ہم کیا کرتے ہیں؟ لے کے بھول جاتے ہیں کہ دینا تو پھر کہتے ہیں برکت نہیں آ رہی، برکت نہیں آ رہی. پتہ نہیں دعا اتنی دیر سے کر رہے ہیں تو جواب نہیں آ رہا. اچھا کچھ دعائیں سنی جا رہی ہیں، کچھ رکنی ہوئی، تو پھر انتظار کرو. صبر کو پورا کام کر دو. ہلچل نہ مچا دو. مطمئن دل جسم کی جان، لیکن حسد ہڈیوں کی سیدھگی. بدبو ہے جو ہم نے اپنے جسموں میں رکھے ہیں. کوئی بدبو کے ساتھ رہنا پسند کرے؟ نہیں.
पर हम रह रहे होते बदबू के साथ। कुछ बातों पर अमल कर रहे होते हैं और कुछ पर अमल नहीं कर रहे होते और दुआ भी नहीं कर रहे होते। चलो नहीं होता अमल तो क्या दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद अमल हो जाए, इस लायक बना, हमसे नहीं हो रहा। मैं तो कहती खुदावंद ये काम मुझसे नहीं हो रहा, फजल कर, ना हाथ बढ़ा, पहले भी तो तूने निकाला और अब भी तू ही निकालेगा, हम खुद से नहीं निकल सकते, हमें निकाल, हमें नापाकियों से धो डाल। पर हम अपनी मर्जी की बातों के लिए दुआ कर लेते और जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं ना आता उसको हम छोड़ देते, भूल जाते, पर वही हमें गुनाह में गिरा देते। वही आज हम सीखेंगे जो भी खुदा हमें पाक रूह के वसीले से सिखाएगा कि खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ता। इस पर हम आज सीखेंगे कि खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ता, पर जिसको छोड़ा हुआ तो आज सुबह यर्मिया 30 का हमें पता चल गया उसके गुनाह की वजह से। तो अभी क्या कर रहा है, उम्मीद को दे रहा है कि ला इलाज का भी इलाज कर लूँगा। इरादा बदल लेता, जैसे की शायदा ने कहा कि इरादा बदल लेता, पर हम इरादा नहीं बदलते। हम एक शख्स को जब माफ़ नहीं ना करना चाहते कहते हैं दुनिया इधर दी उधर हो नहीं सकता, मैंने माफ़ कर, रास्ता बदलना है, जहाँ वो बैठा होगा उस जगह से उठ जाना। वो ये कौन बैठा है, इसको तो मैं माफ़ नहीं कर सकता, नालायक, खुद भी माफ़ हो रहा है तो बचा हुआ। माफ़ करेगा तो बरकत मिलेगी। बरकत देने के लिए तो हम कहते यस्सु सारियां बरकत देते, आज ही दे, आज ही यस्सु कल का दिन ना चले, आज ही आईफोन गड्डी कार सब कुछ सारा कुछ यस्सु आज चाहिए, अगला दिन नहीं चाहिए। पर काम करने की जब बात है कहते अच्छा यस्सु कल तो पक्का रहा, कल तो कराऊंगा, आज तालियां आप सब अपनी दुआ में बेटी अफिया को याद रखें। नेक्स्ट संडे बेटी अफिया की होली कम्युनियन है, सब अपनी दुआ में इसको याद रखें। बेटे मूसा को याद रखें, एलिशा को याद रखें, ताकि ये बच्चे इस दुनिया में जलते चिराग ये हैं, पर चमकाना किसको, खुदा के पाक। जब वो अपना चेहरा चेहरे का नूर जो वो जलवा गर करेगा तो ये रोशन हो जाएगा। बेटे यूसुफ को याद रखें जो कमज़ोर हैं थोड़े से, बेटे हैरी को, आने वाले बच्चों को, छोटे संडे स्कूल को याद रखा कर। मुझे बड़ी खुशी हुई रात को बहन शाजिया और भाई नुमान काशिफ आए हैं, तो उनके बच्चे पहले से संडे स्कूल में आ रहे हैं, तो अदन और अनाया खुदा ने बरकत दे, वो याद कर रहे हैं चीज़ों को, पहली 5 किताबें ने याद है, दाइश खरूज अहबार गिनती इस्तिस्ना, तो बोलते नहीं हैं। तो मैं अफिया मीरब को कहती हूँ, मैं कहती हूँ करो और मेहनत करो, इनको भी शाबाश, ये इनको लेके आती हैं, सुहेब को, दानियल को, रुबाब को। देखिए बच्चों के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ये कल को हमें जो है वो इसका अजर देंगे, ठीक है, हर एक काम के मुआफिक अजर देने को मेरे पास। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप काम करें, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, कभी असाइनमेंट्स मिलती हैं कि आज ये करना है आपको, जिसका कलाम होता है ना, अगर उसको जुम्मे को पता चले उन्हें हवड़ा तो बीमार 2 दिन रह गया, कलाम दीवारी आ गई, कैसे करेगा। पर खुदा एन वक्त पर बताएगा कि आपने क्या करना। आमीन। आज देखेंगे खुदा हमें कैसे नहीं छोड़ता और हम क्यों छोड़ देते, क्यों, अगर वो चाहे तो हम नहीं छोड़ सकते। आज हमने सीखा ना किस वजह से, बदकिरदारी की वजह से छोड़ देते, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से छोड़ देते, हालांकि छोड़ना नहीं चाहिए। आदम और हवा को जब बनाया खुदा ने तो इसलिए तो नहीं बनाया कि वो गुनाह करें, हालांकि पता था कर सकते। जैसे मैंने अक्सर कई दफ़ा बताया, हमें पता है हमारे बच्चों ने मर जाना, तो भी हम बच्चे पैदा करने बंद तो नहीं कर देते, हमें पता भी है उन्होंने मर जाना, लेकिन फिर भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम उनको बड़ा करते हैं, उनके लिए फ़िक्र करते हैं। इसी तरह खुदा हमारी फ़िक्र करता है, चाहता है कि हम गुनाह ना करें, हालांकि वो जानता है
कि ये गिरेगा, पर वो फिर भी उठा दे। ना तवानाई में हमारी तवानाई बन जाए, कमज़ोरी में हमारा जोर बन जाए। अब देखना है कि गुनाह में हम कैसे गिर जाते हैं। मिसाल की किताब में लिखा हुआ है, जिस शख्स से खुदा को नफरत है ना, उसको वो बेगाना औरत के हवाले कर दे। बेगाना औरत या बेगाना मर्द क्या नहीं, जिस शख्स से खुदा को नफरत है ना, चलो एक दफ़ा गुनाह हो गया, जैसे दाऊद बादशाह से हो गया, इरादा करके नहीं हुआ, यानी कि उसने इरादा किया कि वो क्या कि बीवी से उसने करना है गुनाह, ज़िना करना है, ये आपने ज़हन में रखना है। आमीन। गिर सकता है कोई, पर उसमें गिरा ना रहे, उसको अपनी आदत ना बना ले। अगर तो उसने अपनी आदत बना ली है तो उस शख्स से, उस औरत से, उस मर्द से खुदा को क्या है, नफरत। इसलिए उस गड़े में उसने जाने दिया, वो गड़ा है बेसिकली। देखने में तो वो औरत और मर्द नजर आ रहे हैं, पर वो गुनाह, उससे भी पीछे चले जाएं तो वो गुनाह, औरत या मर्द वो गुनाह की किस्म है, सूरत है, जिसमें खुदा उस शख्स को गिरा रहा है जिससे उसको नफरत, ज़िना में उसको ले जाए। पर खुदा को दाऊद बादशाह से नफरत नहीं, उसने हर किसी की बीवी से ज़िना नहीं की। ये नहीं, उसके पास और भी सिपाही थे, अगर तो खुदा को उससे नफरत होती तो वो हर किसी की बीवी से कर लेता ज़िना। ज़िनाकारी की स्पिरिट उसमें रहती, पर उसने पूरी कौम के आगे क्या किया, गुनाह का इकरार, और इकरार करने वाली ज़ुबान खुदा को क्या है। आदम ने यही तो नहीं किया, तो आज तक उसकी भुगत है। उसने कहा हवा ने कराया, हवा ने कहा पुलिस ने कराया, माने नहीं। कोई एक मान जाता तो हाल ज़्यादा बेहतर नहीं, अभी भी बेहतर है। यीशु मसीह आगे इससे बेहतर और क्या चीज़, खुदा का बेटा आ गया हमें बचाने। मैं इस बात पे सोच रही थी कि खुदा ने अपने बेटे को भी क्यों चुना सलीब पर लटकाने, कोई और भी आ सकता, कोई और भी रास्ता बन सकता था, पर बेटा क्यों? इसलिए कि बेटे के अलावा कोई ऐसा काम कर नहीं सकता। हमें पता है कि हमारे किन किन बच्चों में क्या क्या खासियत है, हमें पता है, माँ बाप को पता होता है कि ये बच्चा ये कर सकता है, ये बच्चा ये कर सकता है, इसको खाने में इंटरेस्ट है, किसको घर के कामों में इंटरेस्ट है, किसको बाहर के कामों में इंटरेस्ट है। सब माँओं को, बाप को पता होता है कि कौन सा बच्चा कौन सा काम कर सकता है। इसी तरह बाप को पता था कि इस जहान के गुनाह को कोई नहीं उठा सकता, इतना बड़ा गुनाह पूरे जहान का कौन उठाएगा, उसका बेटा, के बेटे में खुद आया और उसको कुव्वत तो हम बच सकें। ये खासियत खुदा की। आज हमें किसी को माफ़ करना पड़ जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाए, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत मुश्किल काम। हम मुंह से तो कह देते हैं पर दिल पूरा 100% 100 जो है ना वो चल रहा था उसी तरह, उसी दायरा का। हम लोगों को कहते नहीं कोई बात नहीं, मैंने कर दिया, पर एक्शन क्या होता है? क्या आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं जिसने आपका बहुत ज़्यादा नुकसान किया? मुश्किल होता है ना, मुश्किल होता है। हाँ, आंटी कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। इसमें एक आमीन, हालेलुया। ये चाहता है कि हम अपने दुश्मनों के लिए क्या करें, खुदा को काम करने का मौका दे। खुद पुलिस लेके ना चले जाए, पुलिस उससे भी लेगी और आपसे भी, और निकलना कुछ भी नहीं। हम अपने काम जब खुद करने लग जाते हैं, हम अपने काम खुदावन पर छोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे। रोमियो के खत में लिखा है गजब को मौका, इंतकाम लेना मेरा काम है। अब अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको खाना खिला, इससे तू क्या करेगा, उसके सर पर अंगारों का ढेर लगा देगा। ढेर हम क्या करेंगे अपने दुश्मन का?
زیادہ سے زیادہ اس کو جسم میں نقصان پہنچاتا ہے. کیا کریں گے؟ روح کو تو نہیں کہہ سکتے کچھ، ایک اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کی روح کو تڑپا دیں. پر آسمانی باپ ایسا خدا ہے جو جسم کو نہیں روح کو بھی خراب کر سکتا اگر ہم اس کو کام کریں. ایک مثال سے سیکھتے ہیں کیسے خدا ہمیں نہیں چھوڑتا. پھر ہم حوالہ دیکھیں گے زبور 65 نکال لیں میرے ساتھ اور اس کی 4 آیت دیکھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں جب ہمیں کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے غور کریں گے، جب ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی ہم امید تو رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی پر وہ ہمیں سرپرائزلی مل جائے، ہمیں پتہ نہ ہو کہ آج ہمیں یہ چیز ملنی ہے پر ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. غور کریں گے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل جائے پر ہمیں پتہ نہیں آج ہمیں ملے. سب کی زندگیوں میں، میری زندگی میں بھی یہ تجربہ ہے. ہمارا خدا کیا ہے؟ سرپرائز کا خدا، سرپرائز کا. وہ کام کرتا ہے جس کی ہمیں امید ہوتی ہے پر پتہ نہیں ہوتا کب ہونے. پر ہمارا خدا ایسا ہے وہ ہمیں بتایا گا نہیں اور کام کرتا اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتے. ہماری زندگی میں وہ چیز ہمیں مل گئی جو ہمیں چاہیے تو کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی قدر ABC چیز کوئی بھی ہے، فون ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، گھر کی کوئی چیز ہے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. جاب ہے، اچھی جاب ہے، مطلب جاب تو ہے پر اچھی جاب جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں خدا دے. تو کیا اس چیز کی قدر جو ہمیں مل گئی ہے اس دن سے لے کر چلے 1 مہینے کا یہ بھی ٹائم دیتے ہیں یا 1 ہفتے کا اور پیچھے آتے ہیں، 1 ہفتے بعد اس کی قدر اسی طرح رہتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ اس کی خوشی اسی طرح برقرار رہتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. تو کیا کام ہمیں چاہیے؟ سوال یہ مطلب جب ہمیں نہیں ملی ہوتی تو ہم اس کے لیے کتنا بے چین ہوتے ہیں، دعائیں کھا رہے ہوتے ہیں. پر جب مل جاتی ہے تو وہ پہلے دن اس کی قدر اتنی نہیں ہوتی اتنی ہوتی ہے 10ویں دن جا کے اس کی قدر کیا ہو جاتی ہے. میں غور کر رہی تھی، میں گھر میں جب کام کر رہی ہوتی ہوں تو ساتھ ساتھ خدا کے پاک روح کے ساتھ میرا رابطہ ہوتا ہے اور یہ بات میرے دل میں خدا نے کب ڈالی. ہماری شادی کو خدا ان کے فضل سے 15 سال ہو گئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو پہلے دن ہسبینڈ اور وائف کی جو خوشی ہوتی ہے مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، 15 سال میں ہمیں ابھی لگتا ہے جیسے ہماری شادی ابھی ہوئی. ہر روز ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج ہی ہماری شادی ہوئی. ہماری خوشی شاد مانی کم نہیں ہوتی. ہمارے خدا کے فضل سے 5 بچے ہیں تو ہم اگر فیملی جائیں تو وہ کوئی کہتا نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہیں پر خدا نے ہمیں بلیس کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ راز اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کی قدر کو برقرار رکھا. ہمارے چہرے اداس نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوں کیونکہ اس کی قدر کو ہم نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. یہی فارمولا آپ سب نے آزمانا. خوش رہنے کا طریقہ، خدا کو ساتھ رکھنے کا. یاد کریں سب اپنی زندگیوں کے جو شادی شدہ کرتے ہیں، پہلا دن ذرا یاد کریں جب برات جا رہی ہے، خوشی یاد کریں ذرا بہنیں بھی بھائی ہاں ہو رہی ہے نا خوشی. چلے کچھ غم زدہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کی مرضی سے نہیں ہوتی پر وہ بھی خوش ہو جائیں کہ خدا کی مرضی سے اس بات کے لیے خوش ہو. اگر ان کی مرضی شامل نہیں ہے نا تو پھر خدا نے ہونے دی ہے، ایسے نہیں ہو گیا. زمین پر آسمان سے چڑیا بھی نہیں گر سکتی اس کی مرضی کے بغیر. تو 2 لوگ جڑ رہے ہیں تو اگر ان کی مرضی نہیں ہے تو وہ کیسے جڑ رہے ہیں؟ خدا اس پلان کو سمجھے کہ وہ کیسے جڑ رہے ہیں اور اس خوشی کو بڑھائیں. اب میں نے کدھر آنا ہے بلا؟ جیسے ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ پہلے دن ہوتا ہے، خدا نہیں ہمیں چھوڑتا. جان دینے تک بھی جسم میں سے ہم نکل جاتے ہیں ویسے تو مر نہیں سکتے. جسم میں سے ہم نکل جاتے ہیں پر خدا پھر بھی ہمیں ویسا ہی پیار کرتا ہے جس طرح ہم نے اس کو پہلے دن کو اور اس نے کیا
तुम्हारी कदर सोने चांदी के सिक्कों से ज्यादा है। हमारी कदर ज्यादा है, पर हम खुदा को कदर नहीं इस तरह देते। एक महीना हम बड़े जोश के साथ, कई दफ़ा मैंने कहा चलते हैं, 2-3 हफ्ते तक वर्शिप बड़े ज़ोर से कर रहे होते हैं, नए नए आते हैं ना, वाह बड़ी वर्शिप मज़ा आ रहा है ये, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद पता नहीं किधर वो चला जाता है पैशन, ढीले पड़ जाते, तालियां तुलियां बंद हो जाए। पहले दिन आके अच्छी अच्छी हालेलुया हालेलुया, तो 2-3 हफ्ते बाद जो फिर तो कोई तंबी जाती, जिस दिन मेरा मैसेज होना तो कुछ उदास भी हो जाते, इकरार नहीं करे, उदास हो जाते। आज फिर चिड़काइयाँ बाजी ने ना चिड़का ही बस करना, तो खुशी हो जाए। हालेलुया। वो लोग जो तंबी को सह, उस दिन कहे हाँ खुदाम तेरा शुक्र है, आज मेरी डांट पड़ी, खुदाम तेरा शुक्र है, क्योंकि वो शेप निकलनी है, वो डाली की शेप निकलनी है। अगर उसको टेढ़ा ही बढ़ने देंगे तो वो गिर जाएगी। इसकी ट्रिमिंग बड़ी ज़रूरी है, कान शान बड़ी ज़रूरी है। तो खुदा हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, और उस खुशी को आपने हर वक्त महसूस करना। जिस समय होते हुए कमज़ोरी आ सकती है, मैं ये नहीं कहती कि हम गमज़दा हैं तो हम खुश हो सकते हैं। गम करने का एक वक्त है, खुशी का एक वक्त है, पर हम हमेशा गम में ही तो ना रहे। क्या खुशी का वक्त नहीं है? लिखा रात हर रात रोते रहे पर दिन खुशी का, पूरी रात रोते रहे पर जब दिन निकलेगा तो वो खुशी का। खुदा हमें हर वक्त रोते रहना नहीं देगी। खुदा ने कहा ऐ यरूशलेम की बेटियों मुझ पर ना रो। खुदा हमें रोता हुआ नहीं देखना चाहता। वो उसने तो हमारी ज़िंदगी के तमाम आंसू क्या कर दिए हैं, पहुँच दिए। उसने उसको मशकीज़ा में बंद कर लिया। अगर वो चाहता तो वो मशकीज़ा बंद ना करता, वो आंसू बहते रहते। उस वो कदर करता है मज़बा पर ये हमारे आंसू जाते हैं, पर अफसोस उस पर जिसके बाइस है, उस पर अफसोस। इसलिए दिलेरी रखें, आ सकता है रोना पर रोते ना रहो। एंड ये कि रोते नहीं रहना, क्योंकि खुदा साथ है, खुशी शादमानी हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ रहा, तो हम क्यों उसको छोड़ने देते हैं? खुद वो तो नहीं छोड़ता, हम खुद जुदा हो जाते हैं तो क्या होता है? फिर हम रोते ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। आज हम 2 दिन हवाले जो पढ़ेंगे उसमें हमने पहले भी सुने हैं, हिरासा ना हो, मजबूत हो, खौफ ना कर। हमने सारी बातें पहले सुनी हुई, पर फिर हम भूल जाते हैं। फिर जब काम हमारे लगे होते हैं तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। पर हमने भूलना नहीं। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा ने मुझे एक ऐसा हस्बैंड दिया है जो कमज़ोरी में पाक रूह तो होता ही है, पर एक जिस्म में भी आपके साथ कोई हो ना तो स्पीड अप काम हो जाता है, प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, 2 में से एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठा लेता है, और एक पर अफसोस। इसलिए मैंने कहा हस्बैंड वाइफ जहाँ यूनिटी में रहेंगे तो उसमें बरकत, नस्ल दर नस्ल बरकत इसमें छुपी हुई है, सिर्फ इकट्ठे रहें। मैं कोट पढ़ रही थी, वहाँ पे लिखा कामयाबी के 3 बड़े मकाम। कामयाबी के 3 बड़े मकाम हैं शोहर और बीवी का एक साथ लंबा सफर। 3 बड़े मकाम, उनमें से एक मुकाम ये लिखा, अगर अमूस की किताब 3 बाब 3 आयत में, कि अगर 2 मुत्तफिक ही ना तो कैसे इकट्ठे चल सकते? कैसे मुत्तफिक नहीं है तो कैसे इकट्ठे चल सकते? वो झूठ बोल रहे थे अपने आप से कि हम इकट्ठे चले गए। अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिल में आ रही है कि शोहर और बीवी, बेसिकली हस्बैंड वाइफ के तरीके से सिखाने का मकसद ये है कि अगर वो सीख जाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। अगर हस्बैंड की चीज़ें पसंद हैं, मतलब हस्बैंड पसंद है पर उसकी चीज़ें पसंद नहीं है, तो क्या है रियाकार? फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है हमारे पास डॉग है पर मुझे पसंद नहीं है, तो क्या मैं उनको घर से निकाल दूँ? यहाँ इस हद तक एक्सट्रीम्स वाइफ हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे क्या कहना, आई लव यू हस्बैंड, आई लव यू,
पर आपकी चीज़ों से प्यार नहीं। जिस्म तो रखते हैं तो पर जिस्म के किसी हिस्से से प्यार ना हो, करके दिखाएं। कोई अपने बदन से दुश्मनी नहीं रखता, कोई भी लिखा, कोई अपने बदन से दुश्मनी नहीं रखता। कितने दिन इग्नोर करेगा, आखिरकार उसको बदन का वो हिस्सा ठीक करना पड़ता है। चलना है ना इस जिस्म ने, मशीनरी ने चलना है, तो उसको वो ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ता है। बीमार पार्ट को लेके आप नहीं चल सकते, वो आपको ख़त्म कर देगा। बीमारी बढ़ती जाएगी ना तो वो एंड क्या होगा? तो आज इस बात पे गौर करना है, हमारा शोहर कौन है? हम सबका शोहर, हम सबका शोहर कौन है? खालिक, आसमानी बाप लिखा है, मैं तेरा शोहर हूँ। अच्छा, शोहर तो है, पर शोहर की बातें हमें पसंद है। शोहर पसंद है पर शोहर की बातें पसंद है। बाप के काम पसंद नहीं है, बाप पसंद है। उसके कायदे कानून पसंद नहीं है, पर बाप पसंद है। तो बाप कितनी देर साथ रखेगा? निकाल दे। पर फिर अगर वो आना चाहे तो उसे आने का मुशर्रफ बेटे की तरह मौका देगा, दुनिया की भीड़ में खोने नहीं देगा, क्योंकि उसने वादा कर लिया कि मैं तेरे साथ साथ चलूँ। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे के साथ साथ चलूँ। ये उसका वादा है। कैसे वो अपना वादा तोड़ते? हम अगर जिस्मानी रिश्तों में वादा कर लेना तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर 4 बंदों के आगे अगर हमने कुछ अहद मान लिया ना तो तोड़ना। हुआ हस्बैंड वाइफ इकट्ठे सोचे नहीं मिल रही, फिर भी चल रहे हैं क्योंकि शादी की हुई। बरात आई सी, इन्ने बड़े लोगों के सामने इकरार किया है, कैसे लग हो, पर मुत्तफिक भी नहीं होंगे तो क्या होगा? गुनाह बढ़ता जाए और मुसीबतें भी बढ़ती जाए। ऐसी बीमारियां आ जाएंगी जिनका इलाज नहीं, और वो बीमारियां किस सूरत में आएंगी? घर चला जाएगा, बच्चे बीमार होंगे, बच्चे परेशान होंगे, आप खुद बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। ये शक्लें हैं जहाँ पर खुदा हमें छोड़ देता है। ज़बूर 65 और उसकी 4 आयत देखते हैं। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता है। बरगजीदा का मतलब खालिस कर देता है। मुबारक है वो आदमी, और अपने पास आने देता है। जिसको खुदावंद अपने पास आने देता है वो क्या है जी? मुबारक। हम पास तो जाना चाहते हैं पर ठीक नहीं होना चाहते, पास चले जाते हैं। कुछ लोग डॉक्टर से भाग आते हैं ना, पहले भी मैंने बताया था, डर से हो तो ऑपरेशन दस हुए, ऑपरेशन तो नहीं कराना, और कोई हाल दसो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन तो बगैर। पर अगर उस बीमारी का हल ही ऑपरेशन से है तो कैसे हल निकलेगा? इंजेक्शन से डर लग रहा है और बीमारी से निजात चाहिए, लगवा लेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। दाऊद बादशाह क्या कहता है? अच्छा हुआ मैंने दुख सहा ताकि तेरे आइन सीख सकूं। यह दुख हमारी ताकत है, जिनसे हम भाग रहे होते हैं, ये हमारी ताकत है। ये यीशु मसीह के पास ना हमें 100 की स्पीड पे ले जाते हैं। खुशी में जाना मुश्किल है, पर दुख हमें ऐसे पहुंचाते हैं, नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है, कोई शारा शुरा नहीं, तोड़ के शारे यीशु मसीह के पास। ये दुख ऐसी चीज़ है। पर खुदावन क्या कहता है? मुबारक है वो आदमी जिसे वो अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। बारगाह का मतलब क्या है? ये मक़दिस, खुदा का घर भी, और ये हमारा अपना घर। हम जिंदा खुदा के मक़दिस हैं और खुदा का रूह हमने बसा हुआ, हम हैं उसकी बारगाह। अगर हम उसको रहने दें तो वो तो आता है वादे के मुताबिक, पर हम आगे से सोए कुंडी लगा के, लो अपने आप ही निकल देगा, लोते रहो। ये अंदर से खोलेंगे तो अंदर आएगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। उसको अपनी बारगाह में, अपने मक़दिस में हमेशा रहने देना। सिर्फ संडे के दिन नहीं, सिर्फ वेडनेसडे के दिन नहीं, सिर्फ सैटरडे के दिन नहीं, सिर्फ 6 घंटे में, बल्कि हमेशा से हमेशा तक, जिस तरह वो हमारे साथ है, यकसा तौर पर। हमारी कदर जैसे जैसे हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं बढ़ रही होती है। वो खुश हो रहा होता है, मेरा बेटा 25 साल से मेरे साथ चल रहा है। इब्राहिम 25 साल चलता रहा, तब कामिल हुआ। क्या कहा खुदा ने? मेरे हजूर चल और कामिल।
चलने दिया है, आने दिया उसके पास तो वो कामिल होगा। पर अगर कोई आए नहीं तो वजह क्या, खुदा ने उससे हमें दिया। हम बड़े खुश होते थे आज ऐसे नहीं गए, दूसरे में दास में अच्छा तू नहीं गया, मैं भी नहीं गई, आपको दोनों ने नहीं यसु ने आन दिता, बड़े खुश हो रहे हो कैसे आज नहीं गए, खुदा ने आने नहीं दिया तो कैसे आ गया। फिर आता है हम सब खुदा की मर्जी के मुताबिक, प्लान के मुताबिक, ये टाइम पहले सेट है। हम कहते हैं शायद हमने सेट किया, हम 11:30 बजे आएंगे, बड़े टाइम ना आए शाम का, ऐसा मत करो। खुदा हमारे साथ यकसा तौर पर चलना चाहता है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता और हम भी ना उसे छोड़े, कभी ना छोड़े। परेशान, फिर भी मैं कहती परेशान हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, पर भारी फजल समझ के शुक्र किया करे कि खुदा ने तब भी नहीं छोड़ा। हम समझते हैं छोड़ दी, पर छोड़ा नहीं होता हमारी समझ के मुताबिक, क्योंकि परेशानी इतनी बढ़ जाती है ना, मुझे लगता है खुदा ने हमें छोड़ दिया। लेकिन अगर वो मुसीबत में डालता है तो निकलने की राह भी वही देता है, अगर वो घायल करता है तो चंगा भी वही करता है, वही करता है सब कुछ। अगर आपको परेशान होने देता है तो उस परेशान में परेशान ही ना रहे, क्योंकि वो साथ है, परेशानी को ख़त्म करने वाला आपके साथ है, इसलिए उसमें से दुआ करते वक्त करते करते निकल जाए, नहीं तो वो आपको हलाक कर दे, गम आपको हलाक कर दे, उस गम को एक भाला बना दे और इब्लीस के तीरों को उछल डाले, हलाक कर दे। खुदा ने हमें वो भाला दिया और हम ना भाला गिरा दिया तो क्या होगा, इब्लीस तीर चलाएगा। तो हमारे पास क्या है, निजात का हौज, मोहब्बत का बख्तर, रूह की तलवार, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, पूरा लिबास है। और हमारे हथियार कैसे हैं, आम हथियार नहीं है हमारे पास। हथियार कैसे हथियार है जी, कोई बताना चाहिए। किलों को ढा देने वाले हथियार है। किला आम नहीं होता, किलों को ढाने के लिए एक पावर चाहिए होती है। एक किला बना ना, उसकी दीवार की मोटाई ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। यरू का किला गिराना आसान था, कैसा किला। हमारे पास खुदा ने ऐसे हथियार दिए हैं, इसी 6 बाब में लिखा हुआ है, किलों को ढा देना। अगर कोई हमारे दिमाग में गलत ख्याल आएगा ना, तो हमारे पास निजात का हेलमेट, खुद हेलमेट होना चाहिए। कोई तीर आए मोटरसाइकिल पे, अगर आप जा रहे हैं ना, तो अगर आपने हेलमेट पहना तो आप गिरेंगे तो हेलमेट की मदद से आपका सर बच जाएगा। मोहब्बत का बख्तर, आपके खिलाफ कोई लश्कर फैमा जानो, चलो 1-2 बंदे, हमसे तो 1-2 बंदा नहीं संभाला जाता, 1 बंदा लगा दे हमारे खिलाफ, वक्ता बढ़ जाता है। ओहो, मैं तेन सारा पीछे नहीं छाड़ेगा। पर खुदा क्या कहता है, खुदा हमारे खिलाफ लश्कर तमाजान, तो भी हम नहीं डरेंगे। वो हमारे साथ, वो लश्करों को बनाने वाला हमारे साथ होता, हम उस लश्कर से डरते। एक से हम डर जाते, हमने तो लश्करों से नहीं डरना। वो एक की सूरत में आएगा, बीवी की सूरत में, बच्चे की सूरत में। जैसे बहन आफ्तर ने कहा था, पिछले संडे का कलाम किसको याद है, बोलना नहीं, किसको याद है, बड़ा उन्होंने अच्छा कलाम सुना, ईमान। हाँ क्या था, क्या तो क्या बताया था, लूका 22 दिल की तख्ती पर लिखा कर आपको हवाले फिंगर टिप्स पे, जिसमें जिसके का इंटरेस्ट है ना, आप सुहेल भाई टेलर है तो इनके पास बहुत सारी टिप्स होंगी सिलाई के हवाले से, कॉस्मेटिक के हवाले, जॉब के हवाले से, जो लोग बैंकों में जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, उनके पास टिप्स होती हैं। फिंगर टिप्स क्या कहते हैं जी, बहन आशी क्या कहते हैं, फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स ये हेल्थ के डिपार्टमेंट में होती हैं, तो ये रात को बहन मैं इसको गाइड कर रही थी, विनो कर और कुछ चीज़ें, तो ये इनकी क्या है, फिंगर टिप्स पे क्या है, फिंगर टिप्स। ये आयतें हमारी फिंगर टिप्स दिल की तख्ती पर लिखी, 10
10 उंगलियां खुदा ने में दी हैं, तो कहा जाता है जी ये 10 अहकाम, हर उंगली पर एक हुक्म लिखा, हाथों की हथेलियों पर उसने हमारे नाम दुआ रखे। हम क्या थे? नलायक, कुछ भी नहीं, खाली। लेकिन जब वो आया तो हमारी शक्ल बनी, हम जीती जान हो, हमारे अंदर पाक रूह आ गया। लिखा है जो भैनास्तर ने बताया था लुका 22 बाब में, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया। क्या लिखा? ए शमाऊन, ए शमाऊन, इब्लीस ने तुझे मुझसे मांग लिया, पर मैंने तेरे लिए क्या की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। ये है पीछे राज। जो दुश्मन है ना, उनके लिए क्या करे? दुआ। क्योंकि इब्लीस ने उनको आपसे मांगा हुआ है वो आपके रिश्तेदार, पर उनमें होकर कौन काम कर रहा है? खुदा से उसने मांग लिया, क्योंकि उसने काम ऐसे किए हैं, उसने अपने खिलाफ वो इल्ज़ाम लगने दिए हैं ना। कैसे इल्ज़ाम? खुदा से कोई रास्ता नहीं, कोई शुक्रगुजारी नहीं, खुदा से बरकतें दे रहा है पर वो उसकी कदर नहीं कर रहा। लिखा है तू किसी नेमत को फरामोश ना कर। बहुत सी आज हमारी जिंदगी में ऐसी बरकतें हैं जो हमें बिन मांगे मिली, और उसकी इस वजह से हम कदर नहीं करते क्योंकि उसको हमने मांगा नहीं, और वो हमें वैसे मिल गए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, कुछ बच्चों को हम इन्वाइट करते हैं पर वो नहीं आते क्योंकि उनको फ्री में मिलेगा, इसलिए उनको इसकी तो जो कदर कर रहे हैं वो यकीनन बरकत भी पाएंगे। आपके पास बेटी मसा, बेटी शिकायना के हवाले से बेटी जनोबिया रहती है, दुआएं आती हैं कि ये बेटियां खुद मेरी अपनी जो घर में एक ट्रेनिंग सेंटर मुझे लगता है जैसे चल रहा होता है, मतलब कोई भी नहीं है तो भी ये बच्चे ऐसे काम करते हैं। शरूना ही मैंने आपको बताया था पिछले संडे, शरूना 6 साल की है, एक बच्चा 6 साल की उम्र में अगर कंप्यूटर पर काम कर रहा है तो उस घर में क्या है? निजात, खुदा की बरकत, ज़हन खुला हुआ है, रागनियाँ कायम, वो रागनियाँ जो खुदा चाहता है कि हमारे डेरों में, हमारे घरों में कायम, क्योंकि खुदा हमारे साथ। आमीन। आगे लिखा है हम तेरे घर की खूबी से, यानी तेरे मुकद्दस हैकल से असुदा हैं। तेरे घर की खूबी है। हम अगर खुदा को अपने अंदर काम करने देते हैं तो ये हमारे अंदर एक खूबी है, अगर हम खुदा को अपने अंदर काम कर लेते हैं, क्योंकि हमने दरवाज़ा खोलना है। वो ऐसा प्यारा खुदा, वो ज़बरदस्ती नहीं करता, वो ज़बरदस्ती नहीं सिखाता। अगर कोई नहीं सीखना चाहता ना तो वो ज़बरदस्ती नहीं सिखाएगा, इसलिए हमने क्या करना है? उसको आने देना। आगे 1-2 वाले और पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। फिलिपियों का खत मेरे साथ निकालें, फिलिपियों का खत 4 बाब 6 से 7 तक। फिलिपियों का खत किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में, क्या जी? हर एक बात, किसी बात में नहीं। क्या क्या खुदा ने किसी बात की फिक्र ना करना, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें। अब दरख्वास्तें क्या हैं? ऐसी दरख्वास्तें जो हमारी सुनी नहीं जा रही, पर हमने उनको क्या किया? बंद कर दिया। 4 बाब 6 से 7 तक। फिलिपियों का खत 4 बाब 6 से 7 आयत में लिखा है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। आगे आना है फिर खुदा का बात। अगर हमारी कोई दरख्वास्त है, हमारी कोई दुआ है, हमारी कोई मिन्नत है, तो क्या हो? वो शुक्रगुजारी के साथ। मैं कैसे दुआ करती हूँ? अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं दुआ करती हूँ खुदावन तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये दे दिया। ये है दरख्वास्त शुक्रगुजारी के साथ। खुदा ये चाहता, ये नहीं चाहता अच्छा दुआ करी जाए, और जब नहीं मिल रहा तो उसको बातें करते हैं। मैं एक दुआ एक बहन के लिए 4 साल से कर रही हूँ। वो बहन मेरे पास आई तो मैंने उसको बताया
मैंने कहा पता है अब जाके उसका वो मसला हल हो गया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं दुआ करके इंतज़ार कर रही थी, और जब मैं दुआ करती भी थी इसके लिए तो मैं कहती थी खुदावन तेरा शुक्र है तूने ये काम कर दिया होगा। वो दरख्वास्त मैंने शुक्रगुजारी के साथ खुदावन के लिए, और खुदा ने उस बहन का मसला हल कर। तो मैं उसको बता रही थी कितनी देर से ये प्रोसीजर चल रहा है। जब मेरी बेटी अलिथिया पैदा होने वाली थी तो खुदा ने मेरे दिल में इस बहन के हवाले से डाला कि इस जब भी तूने इससे मिलना है तो तूने इसका हाथ पकड़ के दुआ कर, मुत्तफिक हो के इसके साथ। मैं वैसे भी कर सकती थी, सर पे हाथ रख के भी वैसे नहीं, और खुदा ने मुझे कहा इसका हाथ पकड़ के कर, और हम ऐसे ही करते हर महीने जब भी मैं उससे मिलती मैं ऐसे ही करती थी। और अब जाके खुदा ने उसकी, और वो रो रही थी, वो साथ गवाही अपनी सुना रही थी तो साथ उसकी आंखों में खुशी से आंसू निकल रहे। और ये खुदा चाहता है कि हर एक बात में दरख्वास्त हो या दुआ हो या मिन्नत हो, क्या हो, शुक्रगुजारी खुदा के सामने पेश की जाए। तो आगे लिखा है तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखो। फिर वो आके जाहिर करेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। परेशान ना हो, निराशा ना हो। आमीन। एक और हवाला देखते हैं, फिर रन करते। पैदाइश 28 बाब मेरे साथ निकाल लें और उसकी 15 पैदाइश की किताब 28 बाब 15 आयत में लिखे। अब ये आयत हम बड़ी देर से सुन रहे, मैं समझूंगी कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। खुदा ने हमेशा यशवा के ज़रिए से कहा, मूसा के ज़रिए से कहा कि दिलेर हो, खौफ ज़्यादा ना हो। मैंने इस पर कलाम सुनाया था कि हमें दहशत की रूह नहीं मिली। पहला तमुथियुस का ख़त और उसके साथ पहले ही बाब की 7 आयत में लिखा हुआ है कि हमें दहशत की रूह नहीं मिली। हमें कौन कौन सी रूहें मिली हैं? 3 रूहें मिली हैं, अगर किसी को याद है। 3 रूहें हमें मोहब्बत की, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें 3 ऐसी रूहें मिली हैं जो हमारी लाइफ को लाइफ चेंजिंग फार्मूला। मोहब्बत की रूह हमें मिली, हमें तरबियत की रूह मिली, हमें कुदरत की रूह मिली, हमें दहशत की रूह नहीं मिली कि हम खौफज़दा हो जाए छोटी छोटी बात फिर हम खुदा से हट जाते, ऐसे परेशान हो जाते जैसे पता नहीं क्या हो। वो हमने अभी इसको मौका नहीं दे, परेशान हो। 28 बाब पैदाइश और उसकी 15 में लिखा है और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए। देख लीजिए, जहाँ कहीं तू जाए, हर जगह। ये नहीं कि सिर्फ कामयाबियों में हमारे साथ, ना कामयाबियों में भी वो हमारे साथ है, क्योंकि वो रास्ता हमें कामयाबी की तरफ लेके जाने का। खुदावंद कहता है मेरी खुशनुदी मेरे बंदा की इकबालमंदी में। खुदा इस बात से खुश होता है कि उसका बंदा इकबालमंद हो, कामयाब हो। इकबालमंद का मतलब कामयाब हो। और फिर क्या कहता है कि मैंने मुसम्मम इरादा किया, पक्का। खुदा ने क्या इरादा बांध रखा है? पक्का इरादा बांध रखा है कि वो हमें कामयाब करके ही छोड़ेगा, वैसे नहीं छोड़ेगा। एक गीत है उसका, सुभाष की, का मुझे बड़ा पसंद है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ता, पर हम फिर छोड़ देते हैं। क्या लिखा जी? और देख मैं तेरे साथ हूँ। ये ना समझा करें कि जब हम नाकाम हो रहे होते हैं तो उसने हमें छोड़ा हुआ है। हाँ, छोड़ा हुआ है, पर वो ये नहीं चाहता कि आप भी छोड़ दो। तो चेक कर रहा था कि क्या मैं इससे सब चीज़ें जब ले रहा हूँ तब भी मेरे साथ चलेगा या नहीं, या सिर्फ चीज़ों की वजह से चल रहा है। यही तो हमारा वो चेक टेस्ट आता है कि हमें हमसे वो चीज़ें ले लेगा तो तब भी हम क्या उसी खुशी से चलेंगे। पर हमारी खुशी, मैं बताऊँ, कम हो गई, हमारे मुंह बिगड़ जाते हैं। नहीं होने ज़्यादा। आपने तो आंटी वो निचोड़ निकाला हुआ है ना हर एक चीज़ का, पर बच्चे जो है ना, ये इनको हम यही कहते हैं। आपने तो रिजल्ट पे चले जाते हैं। खुदा आंटी को बड़ी बरकत है, परेशान नहीं होती कभी ना, बल्कि हर किसी के लिए दुआ करती है। इक्लेसिया में भी अगर कोई नहीं ना मौजूद होता तो इनको फिक्र होती है ये बंदा नज़र नहीं आया, उसके लिए दुआ शुरू कर दिया। देखें
दुआ करने का जो है ना उनके पास एक तोड़ा है हर किसी के लिए, राह जातों के लिए, रास्ते में, अस्पतालों में, हर जगह पे जहाँ पे ये हेल्पर है वहाँ पर वो लोग कहते हैं आप दुआ करेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा, आपने दुआ कर दी अब ये हो जाएगा। ईमान है, यकीन है, तो हम ना करें, जो इनके साथ है वो हमारे साथ है। अगर उनको बरकत दे रहा है तो हमें क्यों ना दे। ठीक है, हर जगह इस बात पे आपने एक ना डॉट लगा देना कि हर जगह है, वो नहीं छोड़ता, नाकामियों में भी नहीं छोड़ता, खुशी में तो वो है यही है लिखा ना हर जगह। नहीं या कहता चलो मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और यहाँ नहीं, लिख देता मैं यहाँ तुम्हारे साथ जाऊँगा पर यहाँ ना जाना, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, ऐसा कभी भी नहीं करता। हम ना अपनी बीवियों को और अपने शोहरों को अपने असूलों के मुताबिक चलाना चाहिए, खुदा के असूलों के मुताबिक। किसी जगह पर हम उनको ले जाना पसंद करते हैं और किसी जगह, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा ना करें, हरगिज़ ऐसा नहीं है, मजबूरी भी हो सकती है, पर खुदा हमारे साथ हर जगह जाता है, हर जगह, लेकिन हम अपनी अना में आ जाते हैं समटाइम, जो कि नहीं आनी चाहिए। हम कहते हैं ये हमारी बीवी जाके ना हमारा हस्बैंड जाके ये काम खराब है, चंगा भला सही किया तो उनको खराब, ऐसा हरगिज़ ना सोचे। वो आपके बदन का हिस्सा है, अगर वो ऐसा करती है या करता है तो उसको सिखाए, किसने सिखाना है? खुदा ने आपको उसके साथ किस लिए जोड़ा है? ताकि वो उसमें से निकल जाए। पहले भी मैंने बताया उसमें ना रहे, लेकिन हम अपने हस्बैंड को अपनी बीवियों को घर छोड़ा तो कैसे सीखें? करें हम मेहनत करें। खुदा जैसे हमारे साथ हमेशा रहता है, हमने भी अपने साथ अपने बच्चों को और अपने खानदान को रखना, ख़ास तौर पे खुदा के घर में, खुदा के कामों में, इबादतों में ख़ास। चलिए और कहीं आप रिलैक्सेशन दे दें, पर यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर मारना भी पड़ता तो मैं कहती मार लो, हालांकि मारना नहीं चाहिए। बाकी कामों में भी तो मार के करा लेते हैं, चलो बीवियाँ मार नहीं सकती पर जिद पूरी करती है, और मार दे बराबर ही, कहीं मार भी देते बराबर कुश्ती, तो कुश्ती खुदा से नहीं हो सकता। अफसोस तो इस बात का खुदा के लिए भी है, वहाँ पर हम चले जाते अच्छा है नहीं जानता, इन्हें समझ ही नहीं है, तो समझ कितने देंगे? हम आगे आके ना अपने आप को अच्छा पेश कर देते। मैं हमेशा जो बंदा मेरे पास कंप्लेन करने आता है ना, जिसकी कर रहा होता है ना, मैं कहती वो बंदा ठीक है, पर जो कंप्लेन कर रहा है ना वो खराब है। जिसकी कंप्लेन हो रही है वो कंप्लेन उसकी कर रहा है कि ये बंदा मेरे साथ सही नहीं चल रहा, पर वो बंदा ठीक है, पर जड़ा आया ना बड़ा अपना इंसाफ लैन वो शिकायत करने वो अपने वाला अपना ना जस्टिस अपना इंसाफ कर रहा है कि मैं ठीक, पर एक्चुअली वो गलत है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा उसमें शिकायत बड़ी हंस रहा काम। मैं कहती कुछ बहनें खुदा ने बरकत दे नाम नहीं लेना चाहती, हस्बैंड नहायत खराब, पर वो उनके साथ ऐसे रह रही हैं जैसे वो वाकई सर दा ताज। ऐसी बहनों पर मैं कहती फख्र होना चाहिए। मुझे बड़ी बरकत मिलती है उनको देख के, एक मोटिवेशन मिलती है कि ये खुदा के लिए रह रही है, अपने लिए तो काफ़ी साल रह रही है, अब उनका जो मिशन बन गया ना वो खुदा के लिए उनके साथ है, ताकि वो खुदा से मिले। पतरस के खत में लिखा हुआ है तुम्हारे नेक चाल चलन की वजह से तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा शोहर जो है वो खुदा की तरफ है। ये आयत बीवी के लिए, हस्बैंड के लिए। एक आयत अगर बीवी को कही जा रही है तो एज इट इज़ वो हस्बैंड को भी कही जा रही है। अपने आप को निशाना ना मुजरम ना बना लिया करो, साढ़े ना बहुत जुल्म हो गया, जुल्म नहीं हो रहा बल्कि खुदा आपसे प्यार कर रहा है, आपको उसने चुना होगा ठीक करने के लिए, उसको नहीं। जिस पर जुल्म नहीं हो रहा उसको चुना ही नहीं गया, उसको सिखाना ही नहीं वो चाहता, पर जिसको सिखा रहा है वो अपने आप को हरगिज़ ना ये समझे कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म से रहाई करने वाला उसके साथ। तो इसलिए हमेशा इस खुशी को महसूस किया करें, अगर आपको खुदा के अंदर रहते हो सीखने को कुछ मिलता है। हस्बैंड वाइफ को बर्दाश्त करना पड़ रहा है तो खुदा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो 40 साल कर दिया,
कई मैं ऐसे देखती हूँ जोड़े 40-40 साल हो गए, सोचे ही नहीं मिले, खतरनाक काम। मुझे बड़ा डेंजरस लगता है। कैसे एक हस्बैंड को उसकी, एक वाइफ को उसके हस्बैंड की सैलरी नहीं पता, कैसा डेंजरस है। पर वो बीवी अपने आप को जालिम ना कंसीडर करे, वो हस्बैंड अपने आप को जालिम कंसीडर ना करे। कुछ बीवियां भी जॉब कर रही होती ना, अपनी मर्जी से घर को बंदोबस्त कर रही होती, तो आपने इस चीज़ में गिर नहीं जाना, आपने उसके लिए दुआ करनी है ताकि प्लीज उसको छोड़े। उसको प्लीज ने मांगा होगा, आपसे प्लीज ने उसको मांगा होगा, और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आप अपनी मौज में, आप अपनी मौज में, तो आप दोनों ने अपने आप को प्लीज के हवाले कर दिया। कोई एक खुदा के सपुर्द हो जाए ताकि दूसरा भी खुदा से पा सके। खाली इधर आना नहीं, इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालना है। आज पढ़ के ख़त्म करते, तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जब मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने कहा जब तक जो मैंने तुझे कह दिया है। अब ये सारी स्टोरी जो है पीछे आपको पता है, पैदाइश में जहाँ के हवाले से खुदा हमको आगे लेके जाना चाहता है। तो खुदा क्या कहता है कि मैं जब तक तुझे जिस मुकाम पर पहुँचाना है, जैसे मैंने पहले बताया कि खुदा ने इरादा किया है, वो हमें किसी मुकाम पर देखना चाहता है, पर हम रास्ते में से गाड़ी से उतर जाते हैं, तो कैसे मंजिल पे पहुँचे। वो परेशानी खड्डे खुड्डे जो ना मिहलाते हैं, परेशान करते हैं, हम गाड़ी से उतर जाते हैं। और गाड़ी में बैठे रहो, उस कश्ती में डूबती नैया यीशु तेरी पार लगाएगा। उस कश्ती में बैठ तो जाओ, कोई पार नहीं होगा, अगर उतर जाओगे तो फिर पार नहीं होगा, क्योंकि खुदा तब जो है वो छोड़ेगा तो नहीं, पर क्या कह सकते हैं, खुदा से बरकत नहीं है, वो छोड़ना चाहता नहीं, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। ये आप अपने ज़हन में रखें, खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ता। एक हवाला इब्रानियों 13:6 आयत आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, तो उसमें भी खुदा क्या कहता है कि मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा। तो आज हमने ये सीखना है, जैसे मुझे अपने सारी जितनी भी खुदा ने यहाँ पर आकर मुझसे बातें की, मुझे सारी याद, बाकियों को भी याद है। तो मैंने जब एक खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैंने तेरे नाम किताबें हयात में लिखे हुए, कई ऐसी चीज़ें जो हमें याद रखना, तो हर बात ही हमें याद रहेगी तो हम खुदा को अपने साथ पाएंगे। कभी नहीं लगेगा हमें खुदा ने मुझे छोड़ा। इसलिए आपने अपने दिलों में ये मजबूत इरादा रखना है कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़े। परेशान हमें इसलिए करता है ताकि हमें सिखाए, और उस परेशानी से आपने परेशान नहीं। आमीन। खुदा आप सबको